Thank you, as usual. So anyway, so what we are going to do, if you all want, just for this exercise, you can switch on your videos. I'm not going to see how you're looking, what you're wearing, it doesn't matter. So just बैठ के करना है, simple. We are just going to sort of raise the vibrations of our body. Since this whole manifestation is about raising your vibrations, so we will also focus on our physical bodies. And lovely ना, सबको देख के बहुत अच्छा लग रहा है. Thank you so much. And जिसको पता है, जिसका वीडियो ऑन है, वो ऑटोमेटिकली हमारे सामने पेज में आ जाता है. So we can see you all. Thank you. So we will start by tapping our bodies in different at different positions. Okay. So let's start. First, let me. Yeah. So first. EFT tapping, ma'am. No, we are not doing EFT tapping since we are not creating those thoughts. What we are doing is just helping our body to activate, and with that our mind also, so that we become more receptive to the sessions. Just like we had done priming meditation last time. This is more a different way of activating our bodies. Yes, ma'am. So just follow me. First, the sides of your hands. Just tap them, feel the energy. Now tap the backs of your hands. Let's say about 10 times each. The front of your wrists. Feel the energy, okay? That the vibration that is coming in out there. Tap your elbows. Can you feel the energies coming in? Just be sensitive. Now let's tap our heads. Forehead. Both your cheeks with love. Wow. Just as if you're patting yourself with a lot of love. Yes, feel the vibrations. Pat your shoulders. Wow, shabash. You've come to the session. Great. Just the front of your chest. And now we come to the heart. Feel your heart. यहाँ थोड़ा और टाइम लगाते हैं. This is your heart which beats for you, जो आपको feel करने देता है, which lets you feel love. Just feel your heart. Wow. Okay, let's come further down. Let's just pat our sides of our tummies all around, just all around your body. Yes. Pat your thighs. Your knees. And if you can bend down your legs or pull your legs up. Now just relax. Every part of your body is vibrating. Your mind, your heart, all are alert now. With this, we will just do a short invocation. Supreme God, Divine Father, Divine Mother, हमारी आपसे प्रार्थना है कि हम जो ये क्षमा प्रार्थना करने जा रहे हैं, उसमें आप हमारा साथ दें, हमारे अंदर की भावना को समझें और उस पे अमल करें. हमें माफ करने की आप दया करें. हमें सही तरीका नहीं आता प्रभु, हम कोशिश कर रहे हैं. आप हमारी इस कोशिश को ही सराहें, इसे ही हमारा पूरा प्रयास समझें. आप सभी जो भी महान आत्माएं हैं, जो डिवाइन एनर्जीज है, सबसे ये प्रार्थना है कि आप हमारे साथ रहें इस पूरे सेशंस में. हमें यहाँ लाने के लिए शुक्रिया.
हमें यहाँ पहुंचाने के लिए शुक्रिया। हम में से कितनों को तो पता भी नहीं हम क्यों आए हैं, क्या करने आए हैं। आप ही हमें यहाँ लाए हैं। जो आप सीख देना चाह रहे हैं उसके लिए शुक्रिया। हमारी तरफ से हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम हर बात को समझें, हर बात को अपनाएं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। यस, you are muted, Shalini. Thank you. Now we start our today's session after this lovely invocation, and आप सब ने एक vibration feel करी होगी ना when we were tapping throughout our body. एक अलग सी सुरसुराहट feel हुई पूरे from the head to the toe. That is increased our flow of energy. This is what we were trying to do, that increase our vibration in our previous part 1 series जब हमने किया था। तो हम अपना vessel को clean कैसे रखें, हैप्पीनेस की स्टेट में कैसे रहें, वो हमने सीखा। टू आइडेंटिफाई आवर लिमिटिंग बिलीव्स, वो हमने सीखा। यस शोभा दी, गूज बम्स आए थे। सो ट्रू। सो वी हैड आइडेंटिफाइड आवर लिमिटिंग बिलीव्स जो हमें अटक दे रही है। हमने अपने गोल्स को बनाना सीखा, ड्रीम्स को मैनिफेस्ट कैसे करें उसके लिए विजुअलाइजेशन सीखा। And we practice gratitude. Gratitude is the easiest way to keep our vibrations बहुत ऊंचा रखने के लिए एक gratitude में रहना बहुत important है। वो हमने सीखा। हमने परमपिता परमेश्वर पर faith रखना सीखा ताकि we can ask and believe and then receive it without even doubting कि हमें मिलेगा कि नहीं। And then we learnt about our पावर ऑफ आवर थॉट, हमारा जो थॉट प्रोसेस है। इस सब के आगे मैनिफेस्टेशन की जो उसका स्पीड है उसको हम और कैसे बढ़ा सके, इट इज विद फॉरगिवनेस। व्हाट इज फॉरगिवनेस? फॉरगिवनेस इज कि हमने जो किसी ना किसी से हमें दर्द मिला है, हमें किसी ना किसी ने पेन दिया है, उसको हम माफ कर सके, आगे बढ़ सके। टू लेट गो ऑफ दीज फीलिंग्स ऑफ हर्ट एंड पेन। गौतम बुद्धा ने बहुत सुंदर बताया था ना, एक कोल का एग्जाम्पल हम हमेशा लेते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट फॉरगिवनेस, दैट यू नो होल्डिंग ऑन टू पेन, अपना दुख दर्द अपने अंदर समेटे रखने से, उसको पकड़ के रखने से, इट इज सिमिलर टू एक जलता हुआ कोयला अपनी हाथ में रखने के बराबर है, ताकि हम किसी और के ऊपर उसको फेंक सकें। जब तक हमने अपने हाथों में रख रखा है, वो किसको नुकसान दे रहा है? Nobody else, it's just us. वो हमें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, हमारी हथेली जल रही है। It is similar to holding on to pain, grief, sorrow, जो hurt feeling होती है ना, हमें जो दुख है हमारे अंदर, उसको पकड़े रहने से वो हमें अंदर से खोखला करता जा रहा है, which we don't realize. Which is why it is so important कि हम समझे कि हमें forgiveness करनी चाहिए। It is for our own good. And ये forgiveness इसलिए नहीं करनी चाहिए कि किसी धर्म ने कहा या किसी बड़ों ने कहा, ये स्टडी ने प्रूव किया है। अगर हम ये समझ के करें कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है, हम सबसे गलतियां होती है, एंड जैसे हमसे गलती हुई तो वी एक्सपेक्ट कि सामने वाला इंसान हमें माफ कर दे। don't we want to should not we do the same thing? क्या हमें माफ नहीं करना चाहिए? जब हम माफी के हकदार अपने आप को मानते हैं कि कोई हमें माफ करते, तो we also should be readily available, we also should be readily doing the forgiveness. And forgiveness करना बहुत थेरेप्यूटिक होता है, इससे हीलिंग प्रोसेस फास्टर हो जाती है। आपकी खुशियां जब आप लेट गो कर देते हो, कभी कभी जब आप माफ कर देते हो, एकदम से हल्कापन खुद को फील नहीं होता है। हैज एनीबॉडी एक्सपीरियंस दिस कि आपने जब वो जाने दिया, उस चीज को छोड़ दिया, ऐसे लगा जैसे शरीर का 2-3 किलो वजन कम हो गया है। आई थिंक वी लेडीज विल बी द फर्स्ट वंस टू स्टार्ट फॉरगिविंग कि हमारा वजन ही कम हो जाएगा इस चक्कर में कि हमने माफ करना शुरू कर दिया, हमने छोड़ना शुरू कर दिया।
Why to hold on to all these things which is not giving us the right results? हमारी frequency, हमारी जो vibration हमें ऊपर रखनी है, वो टान के नीचे ले आते हैं. Is it worth it? So we need to forgive. And true forgiveness क्या होता है? चलो मैंने तुमको माफ किया, एंड मन ही मन मैं गाली दे रही हूँ, मन ही मन मैं कोस रही हूँ. Ma'am, your voice is not audible. थोड़ा आवाज आपका कम हो गया. Is it for me or for everybody? I don't know. Sorry. voice is clear. We can hear. Clear है, एकदम It's for you. एकदम clear. Clear. No, voice is एकदम clear. I think you check at your end. शायद आपका वॉल्यूम कुछ इश्यू रहा है. Please try it. I will talk a little louder, but check at your end. Thank you. The true forgiveness जो हम बात कर रहे थे ना, जब हम ये समझ के करेंगे कि everybody makes a mistake, कोई भी perfect नहीं होता, और उसके प्रति when you start feeling that ना कि इससे गलती हो गई है, we should feel that वो मन में वो भाव आना चाहिए कि ये भी इंसान है, इससे भी गलती हो गई है, and we should feel compassion, वो understanding होगी ना, then there will be true forgiveness. Then वो अंदर से आपको वो back of the mind कभी चलेगा ही नहीं कि उसने आपके साथ ऐसा किया. Do we all agree कि अगर हम इस अंडरस्टैंडिंग के साथ फॉरगिवनेस करेंगे ना, उस एम्पैथी के साथ करेंगे कि वो बंदा गलती कर सकता है जैसे मैं गलती कर सकती हूँ, तो इस तरीके से करेंगे तो हम बैक ऑफ द माइंड, सबकॉन्शियस माइंड में हमारे साथ ये चलता नहीं रहेगा एंड वो पीछे छूट जाएगा. एंड इन सब प्रोसेस में सबसे ज्यादा माफी का हकदार कौन है? आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन कौन है आपके लिए? कैन समबडी आंसर मी? हम हैं. सो सबसे ज्यादा माफी के हकदार भी हम खुद हैं. टुडे वी विल डू फॉरगिवनेस फॉर आवरसेल्व्स, हम खुद के लिए. कभी आपने रियलाइज किया जाने अनजाने में हम कितने क्रिटिकल होते हैं अपने आप पर? एक क्रिटिक अपने को मतलब बेहतर बनाने के लिए इज अ डिफरेंट क्रिटिक, एंड वही अपने आप के ऊपर ब्लेम कर लेना, हमेशा अपने आप को कुंठित फील करना इज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर. हम अपने आप को बहुत कोसते रहते हैं. किसी ने हमें कुछ कहा, हमने वो अपने आप के लिए सही मान लिया क्योंकि हमने अपने आप को उस नजरिए से आंकना शुरू कर दिया. किसी ने जोर से कहा, हम सहम गए, and we started talking to ourselves saying that we do not deserve the love. हम उसके हकदार ही नहीं हैं. एंड ये जो सेल्फ क्रिटिकल थॉट्स होते हैं, ये कहीं ना कहीं जाके हमारे दिमाग में इतनी ज्यादा बैठ जाते हैं कि हमारे एक्शंस में, हमारे काम करने के तरीके में, हमारे बात करने के तरीके में वो प्रभाव डालने लग जाते हैं. हम अपने आप को उसी नजरिए से देखने लग जाते हैं, और अगर हमारे में टैलेंट भी है, वो टैलेंट को हम भूलकर we start believing what people tell us कि हम क्या है. Is it not? हम अपना सही अपने क्या है वो भूल जाते हैं, एंड वी स्टार्ट थिंकिंग इन द टर्म्स ऑफ व्हाट अदर पीपल टेल अस. आपने कभी अपने बच्चों को ऐसे माफ नहीं किया उनकी गलतियों के लिए? ठीक है, बच्चा है, गलतियां हो जाती हैं. आरंट वी दैट सेम चाइल्ड? क्या हम वो बच्चे खुद नहीं है जो हमको माफी के हकदार हैं? सो इट इज सो इम्पोर्टेंट कि आप अपने आप को, गलतियां होंगी, सो वी शुड लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स एंड नॉट रिपीट द मिस्टेक्स. ये एक्सेप्टेंस आना बहुत जरूरी है कि हमसे गलतियां हो सकती हैं, रिपीट ना करें, एंड उसको अपने लिए इतना ज्यादा हावी ना होने दे कि हम अपनी गलतियों को पहचानना मुश्किल हो जाए. एक होता है ना, आप अपनी गलतियों को पहचानते हो तो आपको ऐसे लगता है कि आप सही इंसान नहीं हो, आप परफेक्ट इंसान नहीं हो, आप बहुत गलतियां करते हो. इस वजह से कई बार हम अपनी गलतियों को जानते बूझते हुए भी शट कर देते हैं. उसको समझना नहीं चाहते हैं, उसकी तरफ देखना नहीं चाहते हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं. सेल्फ फॉरगिवनेस क्या होता है? टू एक्सेप्ट आवरसेल्व्स एज वी आर विथ ऑल आवर इम्परफेक्शंस. हम जैसे हैं वैसे हमें एक्सेप्ट करना सबसे बड़ी बात होती है. हम उस वक्त अगर हम ऐसा कर लेते हैं ना, तो बेचारी मी से विक्टिम कार्ड जो हम बोलते हैं ना, कि मेरे साथ तो हमेशा ऐसा ही होता है,
इससे हम अपना रिस्पॉन्सिबल बन जाते हैं, अपना द चॉइस कम्स इन आवर हैंड्स हाउ टू रिएक्ट इन अ सिचुएशन। एंड इससे क्या होता है, हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है दैट रियली गोज अप, बिकॉज चॉइस हमारे पास है। वी आर नॉट द विक्टिम्स एनीमोर, वी आर द पर्सन हु हैव, इट इज आवर जजमेंट नाउ, इट इज एक्सपीरियंसेस जो हमारी जिंदगी में होती है वो हमारे कारण होती है। कई बार हम बहुत ज्यादा सेल्फ क्रिटिसिज्म में इसलिए चले जाते हैं क्योंकि हम ईर्ष्या कर रहे होते हैं, हम दूसरों की निंदा कर रहे होते हैं, हम कहीं ना कहीं फॉल्स प्राइड में जी रहे होते हैं। we are not taking responsibility of what we have to do in our lives. हम प्रोकास्टिनेट करते हैं, लेजी होते हैं, काम को हमेशा टालते रहते हैं और हमें बोलते हैं मैं तो बस ऐसी ही हूं। एंड बाद में जब सिचुएशंस अनुकूल नहीं होती है, आप प्रोग्रेस नहीं करते हो लाइफ में, देन व्हाट डू यू से, बेचारी मेरे तो हालात ही ऐसे हैं, मेरे साथ तो कभी अच्छा होता ही नहीं है। This is exactly what we say. And we have to do self forgiveness at two levels. एक, अपने आप को अपने साथ गलत किया, हमने खुद अपने साथ जो गलत किया उसके लिए माफी देंगे। एंड एक जो हम दूसरों के साथ गलत करते हैं, जाने अनजाने में हम बहुत सारी मतलब हर्ट कर देते हैं किसी को, बहुत सारा दुख दर्द दे देते हैं किसी को, उसके लिए हम माफी मांगेंगे। Later on in our meditations, we will do all this. There are 3 steps for self-forgiveness. First, we need to acknowledge. आज गलतियां, जब हमसे गलती होती है, सामने वाला को पता चले ना चले, सबसे पहले we know. Don't we know in our hearts of hearts कि हमसे गलतियां हुई हैं? So acknowledge करने से क्या होता है, हमें हमारी गलतियों का पता चलता है एंड नेक्स्ट टाइम वी आर लिटिल मोर अवेयर कि हम वो गलतियां ना दोहराएं। एंड एक्सेप्ट करना कि हमसे गलती हुई, हम भी इंसान हैं, हमसे गलती हुई है और जो हो गया सो हो गया, आगे से हम इसको ना दोहराएं। एंड टू डिसाइड एंड फॉरगिव, टू मूव ऑन, इससे हम आगे ना करें एंड लेट्स स्टार्ट डूइंग बेटर। एक सेल्फ इमेज को बेटर बनाने के लिए द बेस्ट थिंग इज टू डू इज बी इन ग्रैटिट्यूड फॉर व्हाट यू आर। आप जैसे हो, आपकी परिस्थितियां जो है, जो हमने ग्रैटिट्यूड में सीखा था ना, आप जैसे हो उस चीज के लिए आप ग्रेटफुल होगे, देन यू ऑटोमेटिकली आपका सेल्फ एस्टीम बढ़ेगा एंड सेल्फ क्रिटिसिज्म कम होगा एंड देयर विल नॉट बी एनी सिचुएशन वेयर वी नीड टू फॉरगिव आवरसेल्व्स। And the concept that nobody is perfect, everybody makes mistake, वो concept को अगर हम any time and every time याद रखेंगे ना, we will be more compassionate दूसरों के साथ and खुद के साथ। Benefits क्या क्या है forgiveness के? I think we all know क्या क्या benefits हैं। Can anybody pinpoint 1 or 2 benefits of doing forgiveness? We feel a great burden has been lifted from our head. Sorry, I couldn't hear you. We feel a burden has been lifted from us. True. जिससे फॉरगिवनेस करते हैं उसके साथ संबंध अच्छे होते हैं। We are at peace with ourselves. Very We true. live our life. We live our life. एक calm feeling लगता है अपने आप में। We live a happy life. एक पावर आ No. जाता है। No Correct. guilt. No guilt. हम लोग भी खुद खुश हो जाते हैं। We अंदर से open the खुशी channels होती for है। blessings. We all know the benefits of forgiveness. I need not even say, we all know कि forgiveness करने से हमें क्या क्या benefit मिलता है। सामने वाला आपको माफ करे ना करे, आपने अगर उसको माफ कर दिया, आपकी तरफ से आप बहुत पीसफुल हो जाते हो, आपकी एनर्जीज बहुत काम हो जाती है, आप बहुत अच्छा, मतलब आपके विचार इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाते हैं, आप अच्छा सोचने लग जाते हो, आप अच्छे डिसीजंस लेने लग जाते हो। एंड फिजिकली भी आपका पैरामीटर्स, जो बीपी है, हार्ट का जो एलिमेंट्स हैं, जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है बॉडी में, पेन्स है बॉडी में, वो काफी हद तक कम हो जाता है। ओनली विथ फॉरगिवनेस, ओनली विथ लेटिंग गो ऑफ थिंग्स व्हाट वी आर होल्डिंग ऑन टू फ्रॉम ऑल दीज इयर्स। सो शुड वी नॉट ट्राई टू स्टार्ट फॉरगिविंग पीपल? एक बहुत अच्छा टिप है व्हेन इट कम्स टू फॉरगिवनेस ना, आपको शायद पुराना याद नहीं हो,
अभी का अभी शायद आपसे कोई गलती हुई हो, आपने किसी को हर्ट कर दिया जाने अनजाने में, देन एंड देयर सीक फॉरगिवनेस, देन एंड देयर माफी मांग लीजिए। उस बंदे के सामने आपको बोलने की भी जरूरत नहीं है, मन ही मन माफी मांग लीजिए। दैट आप अपने आप को प्रायोरिटी नहीं दिए हो, आप समझ गए हो कि आपने अपने आप को बहुत, आप अपने आप से ज्यादती कर रहे हो। सीक फॉरगिवनेस देन एंड देयर, इट उसी वक्त आपका वो एक कर्मा जो है आपका, वो नलिफाई हो जाता है। आर वी ऑल रेडी फॉर द मेडिटेशन? Yes. 10 से 15 मिनट का मेडिटेशन है। आप अपने मोबाइल फोन्स को आई थिंक साइलेंट मोड पे डाल लीजिए ताकि आप डिस्टर्ब ना हो थ्रू आउट द मेडिटेशन। एंड sit in a comfortable position, sit straight with your eyes closed. Sandy, I would like to add a few lines before we start the meditation. Yes, Bhaiya. See, we need to understand if forgiveness करना क्यों जरूरी है, ये अभी सालनी ने बहुत अच्छे से अपने को बताया। But what we tend to forget is, आज के दिन में हमसे कोई गलती हुई या किसी ने हमारे साथ कोई गलत किया, हम इमिडिएटली उसको फॉरगिव कर देते हैं, राइट? अपने इतना ज्यादा फॉरगिवनेस के सेशंस हो रहे हैं, वी आर बीइंग सो अवेयर कि इमिडिएटली कोई गलती हुई और हम फॉरगिवनेस कर देते हैं और हम माफी मांग लेते हैं या हम माफी दे देते हैं। बट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट वो जो अपने को हर्ट मिला था उसके पीछे लेसन क्या है और उसके पीछे पेन क्या है, हमको वो पेन को समझना पड़ेगा। और वी कैनॉट जस्ट बाईपास द पेन। अगर आप पेन को बाईपास करके खाली फॉरगिवनेस कर देते हो तो वो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों आपके दिमाग में फिर से आ जाएगा और आपको फिर से तकलीफ देगा। That is, you're not trying to forgive, you're just trying to bypass the particular emotion at that particular minute. So we need to understand कि जो भी पेन हमको हुआ है वो पेन क्या था। अगर उससे हमको हर्ट हुआ है तो हमको रोना है तो 1 मिनट हमको रोना है, 1 मिनट उससे तकलीफ हुई है तो उससे क्या तकलीफ हुई है वो भी हमको एनालाइज करना बहुत जरूरी हो जाता है। We just can't just forgive it। उस कारण से हमारे अंदर क्या तकलीफ हुई है, उसका क्या अफेक्ट हुआ है, उसका क्या प्रोडक्ट आया है, उसको भी समझना हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। We just can't bypass the pain, अदरवाइज वो पेन धीरे धीरे अपने अंदर जमा हो जाता है और स्लोली एंड ग्रेजुअली इवन हम फॉरगिवनेस अपर लेवल में कर पाते हैं, इनर लेवल में वो एंजाइटी बन के, स्ट्रेस बन के हमारे सामने आता है। थैंक यू। You can continue. Thank you, Bhaiya, for your input. Thank you, dear. Ma'am, can I ask you about forgiveness just now? Like, sir has said something about forgiveness, that he said that bypass the one that we are having it. So I mean, we are doing forgiveness, but it is not truly from our heart. Okay, so Yeah. now how to forgive really truly by our heart, that is sometimes, it is for us as a human, it is not there, like we forgive people, but at times the same thing or the same incident repeated again and again and again. Okay, we forget it again, forgive again, but it repeats again. So Yes, how you to were- This was the point I was actually hinting upon. May I know your name, please? I'm Usha here. Come again, please. I didn't get your Sorry? name. I didn't get Usha. your name. Usa. Yeah, this was the point I was referring to because this is the level of understanding in forgiveness. आपको कोई hurt हुआ है, you need to forgive. We understand it, right? लेकिन वो pain किस लिए हुआ, वो hurt किस लिए आया? Whether we were expecting from that person that he should behave or she should behave in that particular pattern, or we wanted ourselves to be perfect, that we wanted to be perfect, we had to be in particular discipline or particular pattern we should be following our lives, and we were not following. So we need to understand why that pain has come to me. Yes, what was the pattern inside, and that pattern should not be diffused forever. So because आज एक जन ने pain दिया है, until unless you learn the lesson, some other person will come and put the same thing on you.
So we need to let go from the bare bottom, the seeds of that particular pattern. So the hurt is coming again and again to us. That is the reason, even after Salini explaining it so well, I've just added that because now the people are ready to get to the next level of understanding. So we cannot bypass our pain. किसी ने hurt किया है, yes, we need to forgive. But उसने क्यों hurt किया, why we were hurted. Otherwise, say we say कि रास्ते में जा रहे हैं, dogs bark कर रहे हैं, and we should not be affected. But किसी ने आके मेरे को कुछ बोल दिया, तो why we hurted? It hurted our ego, it hurted our way of thinking, it hurted our conscience. What it hurted upon us. So that pattern we need to understand, and that pattern we need to correct, because that person is just a messenger to us, teaching us the lesson, what we need to correct in ourselves. So in a coming future, the same pattern, the same pain does not come to us again. That is so important. Right? Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much. Yes, Salini, you can start the meditation here. Thank you, Priya. Sit comfortably. Sit straight. अपनी आंखें बंद कर लीजिए. कुछ गहरी सांस लीजिए. Very slowly, deeply. अपने आप को रिलैक्स कीजिए. सांसों की गति को धीमी कीजिए. Deep inhalation and long exhalation. हर एक सांस के साथ महसूस कीजिए कि आपका पूरा तनाव जैसे गायब हो गया हो. रिलैक्स. जो भी विचार अभी आपके मन में आ रहे हो, चाहे वो पास्ट के हो या फिर भविष्य के, उन्हें अपनी सांसों के साथ जाने दें. इस वक्त आप सिर्फ यहाँ हैं, पूरी तरह शारीरिक, मानसिक, मन से, आत्मा से इस मोमेंट में पूरी तरह यहाँ मौजूद हैं. धीरे से सांस लें और छोड़ें, इस विश्वास के साथ कि आप उस परम शक्ति से जुड़े हुए हैं जो हमेशा आपका भला चाहती है. आप हमेशा सुरक्षित हैं. पूरी तरह इस शक्ति के सामने नतमस्तक हो जाएं. और अपने आप को पूरी तरह शांत महसूस करें. बंद आंखों से अपने आप को अपने सामने देखिए. अपने आप को प्यार से देखिए. प्यार की बारिश कीजिए अपने आप पर. आपका मन बहुत ही खिल चुका है. अपने आप को एक प्यार भरी झपकी दीजिए. चूम लीजिए. आपसे बेहतर, आपसे प्यारा इस दुनिया में आपके लिए और कोई नहीं है.
आपके प्यार का प्रकाश आपको पूरी तरह घेर चुका है, आप में समा चुका है, आपके रोम रोम में जा चुका है। फील द लव, महसूस कीजिए। अब आप अपने सामने अपनी वो गलती को देखिए जिसके लिए आप अपने आप को दोषी ठहराते हैं, अपने आप को कोसते रहते हैं। Try to recollect the guilt, the mistake. शायद अपने दूसरों के कहे अपने आप को कम आंकना शुरू कर दिया था, नीचा देखना शुरू कर दिया था। सोचा मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती हूँ, मुझे कुछ आता ही नहीं है। या फिर अपनी फ्रस्ट्रेशन आपने अपने बच्चों पे निकाला, शायद हाथ भी उठा दिया था और आज तक गिल्ट की फील में रह रहे हैं। ईगो के कारण रिलेशनशिप में दरार आ गई थी, आपने जानबूझकर उनसे बात नहीं की। कभी कभी अपनी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को छुपाने के लिए हम गलत प्राइड में जीने लगते हैं, रिलेशनशिप में तनाव पैदा कर लेते हैं। या फिर हमेशा दूसरों की जरूरतों, उनकी चॉइस को हमने ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया। एज सिंपल एज घर पर खाना क्या बनेगा, मेन्यू हमेशा घर वालों की चॉइस से बना, कभी हमने अपनी मर्जी नहीं रखी। और धीरे धीरे आपका मन मरता चला गया। मेरी खुशियां मेरी जिम्मेदारी है, ये कभी सोचा ही नहीं। हमेशा अपनी खुशियों की लगाम किसी और के हाथों में देती आई हूँ। घर वाले खुश तो मैं खुश, बच्चों की खुशी में खुश। आपकी एक्चुअल खुशी किससे है सोचा ही नहीं। क्या करने से मुझे बड़ा आनंद आता है जाना ही नहीं। आप अपने अपने अंदर झांकिए। आप अपने आप को किस चीज के लिए दोषी ठहराते हैं, थोड़ा टटोलिए। मुझे दूसरों से बड़ी ईर्ष्या होती है, जलन होती है, मुझ में कुछ कमी है, ये फीलिंग आती रहती है। किसी की शारीरिक सुंदरता देखकर या फिर किसी के मधुर संबंध देखकर, पैसा, शोहरत और कुछ नहीं मिला तो दूसरों की खुशी देखकर ही जलन होती है। मन ही मन हीन भावना आती है। जाने अनजाने में मैंने दूसरों को बहुत चोट पहुंचाई है, अपनी बातों से, व्यवहार से, सोच से, जिसकी वजह से मुझे बड़ी ग्लानि महसूस हो रही है।
कुछ ना भी बोलूं तो भी मन ही मन मैंने दूसरों की बड़ी निंदा करी है। मैं दूसरों को अपने आप से कम आंकती रहती हूँ। कहीं ना कहीं मुझ में घमंड आ गया है। I am better because I take these sessions, और I am better because I attend these sessions. मुझे बड़ा पता है, मैं बहुत ही ज्ञानी हो गई हूँ। आप किसी एक गिल्ट में या बहुत सारी गिल्ट में जी रहे, आज उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लीजिए। यह सिर्फ मेरी और मेरी चॉइस थी। मेरी जिंदगी आज जैसी भी है वह सिर्फ मेरी वजह से है। मुझे एहसास है कि मैं खुद के साथ बहुत कठोर रही हूँ, और आज मैं अपने आप को इसके लिए पूरी तरह से क्षमा करती हूँ। मैं अपनी भावनात्मक और शारीरिक जरूरतों का ख्याल न रखने के लिए, खुद से प्यार न करने के लिए, अपने आप को कभी भी प्राथमिकता न देने के लिए, और सबसे ज्यादा खुद को जैसी हूँ वैसी स्वीकार न करने के लिए क्षमा करती हूँ। मैंने ईर्ष्या की, मैंने दूसरों से कठोर शब्द कहे, मैंने अपने आप को जाने अनजाने में की गई सारी गलतियों के लिए क्षमा करती हूँ। मैं स्वयं ईश्वर की संतान हूँ, ईश्वर की एक रचना हूँ। मैं खुद से प्यार करने का, अपने प्रति आभारी होने का, और खुद को जैसी हूँ, मेरा भौतिक शरीर और मेरी मानसिक क्षमताएं जैसी है वैसी स्वीकार करने का वादा करती हूँ। मैं उस परम पिता परमेश्वर, इस कायनात की शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे ये लाइफ दी, मुझे बनाया, मेरी रचना की, इतना कुछ बिन मांगे मेरी झोली में आज तक डालते आए हैं। प्रभु, इस तन मन धन का शुक्रिया, सारे संबंधों का शुक्रिया। I love myself as I am not. I respect myself as I am not. I accept myself as I am and as I am not. I'm so grateful to myself as I am not. Thank you, universe. Thank you from the bottom of my heart. Om Shanti, 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 Om. Whenever you are ready, please open your eyes with a big smile.
Let's all clap for ourselves. Let's all take the pledge that we'll love ourselves as we are. We'll accept ourselves as we are. Thank you so much. Thank you for attending. Thank you. Thank you. Thank you. थैंक यू दीदी, बहुत सुंदर. Thank you, Salini, for a wonderful session. So peaceful. Thank you. Very relaxing. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. We have 4 minutes. Let's do something wonderful in next 4 minutes, right? Let's utilize our last 4 minutes also. Everyone there or everyone is leaving now? Let's all laugh for a minute. Let's all laugh. Let's laugh. 3 minutes, we'll have something very important. Just close your eyes. Everyone close your eyes. We'll enjoy this. Let's close our eyes. This is very important. Be aware of your breathing. Inhale slowly. Exhale slowly. Inhale slowly. Exhale slowly. अब अपने आप को आप 2 साल की बच्ची के जैसे ध्यान करिए कि आप 3 साल की छोटी बच्ची हैं और अपने पापा मम्मी की उंगली पहन के आप घूमने गई हैं. Just try to recall that you're a small child of 3 years. अपने पापा मम्मी की उंगली पकड़ के आप घूमने गई हैं. And you're enjoying that moment. आप कभी कोई सामान चाहिए रहता है आपको, कभी आपको कुछ चाहिए रहता है. You are asking different things to your parents and you are so happy. You are wearing your favorite dress. Just feel that. You are wearing your favorite dress. आपके एग्जाम्स अभी स्कूल में खत्म हो गए. You are so happy. You are wearing your favorite dress. कोने में खड़े होके आइसक्रीम खा रहे हैं. कुल्फी ले रहे हो आप, नहीं ऑरेंज बार ले रहे हो. मम्मी बोल रही है कपड़े गंदे मत करना. And enjoying that orange bar. You are so happy. You are trying to lick the orange bar from the top. कि जल्दी जल्दी खत्म ना हो जाए. मम्मी बोल रही है एक और मिल जाएगी, ठीक से खा लो, गिराओ मत. And you are feeling happy. Recall that happy moment in you. Be happy. Be very happy. गलती शरीर से होती है, आत्मा से नहीं. आपकी शरीर गलती करता है लेकिन आत्मा उसको सुधारती है. वैसे ही ये खुशी जो हमें आत्मा दे रही है, वो पल याद करके जो हमने अपने जीवन में अपने पेरेंट्स के साथ बिताया, वो छोटी छोटी खुशी जो हमारे अंदर है वो बाहर निकल रही है और हमको बहुत ज्यादा खुशी दे रही है. हमने अपने आप को इतना बिजी कर लिया है कि हम वो खुशी के बारे में सोचना भूल गए, वो खुशी को महसूस करना भूल गए. पर अब नहीं, मैंने अपने आप को माफ कर दिया और मैं वो खुशी के साथ फिर एक हो गया. मेरी ये खुशी मेरे साथ हमेशा हर पल साथ रहेगी और मैं आंख बंद करते ही एक खुशी का आडंबर मेरे चारों तरफ फैल जाएगा और मैं खुश हो जाऊंगी. और मैं जैसे जैसे खुश होती हूँ, चारों तरफ खुशी का एक बादल फैल जाता है और मेरे चारों तरफ जितने भी लोग हैं वो भी मेरी खुशी से खुश हो जाते हैं. कम बैक. वो आइसक्रीम खत्म हो गई है आज के लिए. वापस आ जाइए.
शालिनी दी ने सरिता मैम को थैंक यू बोलिए इतना बढ़िया सेशन देने के लिए। एंड आपका भी अपने आप का अपना बैक को पैट करिए कि आप इस सेशन में आ सके, आपने टाइम निकाल सका एंड आपने ये टाइम आके ये सेशन अटेंड किया। इट्स अ गुड अचीवमेंट, दैट इज आल्सो अ पॉइंट ऑफ बीइंग हैप्पी, राइट? यस शालिनी, Yes, Priya. yes Yes, Sarita ma'am, it's so important. Thank you Divine for this sessions. Thank you everyone being present here. Because of you these sessions are being possible. Thank you so much. There are no pain, there are only lessons. Thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you Thank from you deep for heart. reminding us of the Thank ice cream. you. Thank you. Thank और कभी भी तकलीफ Thank हो you. मन में, वो आइसक्रीम खाने चले जाना अपने पेरेंट्स के साथ हाँ, एंड खुशी भूल हो ही जाएगी। गया था वो आइसक्रीम के बारे में। Yes, that is so important. Thank you, thank you, thank you. सर आइसक्रीम का टेस्ट भी आया था। Yes, आइसक्रीम का टेस्ट भी आया था, होठ भी गंदे हो गए थे, कलर भी लग गया था, ड्रेस भी गंदी हो गई थी। और ये थ्रोट के वहां पे जैसे वो रे- तेज से रेस भी गीला याद हो आ रहा गई था थी। कि Yes, swallow कर रहे थे, वैसा वाला भी feel। वैसा वाला। वही And यही छोटी छोटी क्षण है जो अपने पास हैं, जो हम भूल जाते हैं अपने को याद करना। जैसे जैसे वो याद करते हैं अपार खुशी मिलती है, और ये खुशी जब अपने को मिलती है तो सारा वातावरण खुशमय हो जाता है और सब कुछ अच्छा लगने लगता है। थैंक यू so much. Thank you for being present. Thank you so much. Thank you. Rachna has raised her hands. Do you have a question, Rachna? She had raised it before the meditation. Acha, she's put it down. Okay. If anyone has any questions, don't raise your hand and put it down. आ जाओ, बोलो। मेरे को करना था बात। हाँ हाँ Yes. रितु जी। मैं ये बोल रही आपके तो होठ अभी भी आइसक्रीम से लाल हो रखे हैं। मैं आइसक्रीम में खा के बैठी थी और अब खाऊंगी। गुड 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 गुड। मैं ये पूछ रही थी कि जब शालिनी जी ने मेडिटेशन करवा रही थी, वो बोली कि बच्चों को मारा है, झगड़ा किया, गिल्ट हुआ है, tears were rolling out from my eyes. So is it correct or not? Good. इट्स वेरी गुड। वो कहीं पर डीप, कहीं पर आपको उसका दर्द था, वो दर्द निकल गया। हाँ, वो निकल गया। इसीलिए कहते बाईपास नहीं करना, वो दर्द तो सहना पड़ेगा। एक बार वो दर्द सह लिया, अब आगे से कभी टीयर्स नहीं निकलेंगे। वो दर्द निकल चुका है, वो गिल्ट निकल चुका है। दैट इज सो इम्पोर्टेंट। Anyone else? Any other questions? Yeah, I have one question. Please, can I have your name, please? I I'm can't see your Rach- name. Sorry. So I'm Rachna here. Okay, Rachna. Yeah. So as you were mentioning before meditation, that anything which comes in our life is to teach some lesson. Right, And until unless we learn that lesson, it may keep on repeating. right. But how can we try to figure out what is the lesson for us in that? Because when anything happens, that itself demotivates you or suppress you so much that you are into that and you may not be in a right position to think what actually it means to you. Yes, that's the role of your guru or the mentor comes in. If you're not been able to decode your own lessons, you need to talk. You need to ask your mentor, this is what is happening with me. I've not been able to decode. And if you are into a regular meditational practices, you have to meditate more. Or the best way, what I have learned how to decode is, firstly, what was the pain? I write it on a piece of paper. Once I start writing on a piece of paper, many points are clear why this thing has come to me. Otherwise क्या होता है कि जब तक हम उसको लिखते नहीं है, दर्द है दर्द है दर्द है, मेरे को तकलीफ हो रही है, मेरे को पता ही नहीं चलता है तकलीफ क्यों हो रही। Once I write it on a piece of paper, ओ ऐसा था क्या, इसलिए दर्द हो रहा था क्या, ये पॉइंट थे क्या, तब याद आता है। तो once you start writing on a piece of paper, फिर अगर तब भी नहीं समझ में आ रहा है, you can contact Shalini, Sarita ma'am or me. We can really help you out on this. Don't worry on that. Sure, yeah. Thank you so much. Really you so thank you and really blessed to be part of these sessions.
You should be very Thank you. thankful to Salini ma'am and Sarita Yes. for this, Yes. doing this Yes. wonderful service to us, all of us. Yeah. I wouldn't mind telling everyone how you are after us for this session. We thought we'll do it. हाँ श्राद्ध निकल जाते हैं अभी श्राद्ध का काम है. But Vivek ji was after us. नहीं, yeah, and he was the one, if everyone remembers, हाँ group में commit कर दिया था. Yes, the second lot is coming. So there were no बहाने, कुछ नहीं चला. So we need mentors. Even we always look up to mentors. How to go ahead in life, क्या करना है. And again, अगर कोई भी इस ग्रुप में भी हमारे साथ ना want to take sessions, please come forward. We'd like to add up. If someone wants to come up, yeah, I want to take a session on this. Really, we welcome you all. कोई भी आओ. आप ये नहीं कि कहीं से तो start करोगे ना. Come us, join us. We'll help each other grow. Yes, This is that's so important. yes. That was such a great point. Vivek. Only you can think about it. हाँ एक्चुअली मैं किसी को लगे ना मैं कहाँ लू सेशन मेरा भी मन होता है मैं लू कम ऑन लेट्स ट्राई यहाँ पे अच्छा 5 मिनट्स का सेशन लीजिए 5 minutes का session. Talk about your experience. जैसे आप अभी जूम में क्वेश्चंस पूछते हो ना, वैसे ही आप अपना एक्सपीरियंस बताओ तो लोगों को हेल्प होगा. The more you help others, the more help you get. Come share your experiences. धीरे धीरे आप चालू करोगे एंड वैसे ही सबके अपने अपने सर्कल्स हैं एंड यू कैन रियली हेल्प पीपल आउट बिकॉज सब लोग क्या कोई ना कोई some people are looking at you for help. चाहे आपके बच्चे हो, चाहे मेट्स हो या आपके फ्रेंड्स हैं. So everyone is a mentor in some way or the other. We are mentor to our child, maybe to our husband, to our spouse. We are already doing the mentorship. So why not to a bigger level? yes Yes. Thank you so much. And if you want, you can keep on writing the post on the Facebook. I'm still blessing them. So your things will manifest. Don't worry. Everything will manifest for you people. yes where Vivek ji blesses we have our full confidence so please post your requests on Weave the Magic and all your requests will be blessed. So we come back tomorrow with it's just a 4-day session. We've I taken just want to mention one thing, Sarita Bhavi here, as we had mentioned earlier also, na, as we bless our own wishes after our prayers and after what we do puja at home, similarly, we can bless everybody's wishes on Facebook, on everybody's wishes in this magical group. And in fact, we can, who maybe people have not mentioned, but their also wishes may come true. We can, Bless everyone in the magic group. yes. Those who are there connected to us as a family. Vivek ji pe mat chodo bhai. Let's all bless. Everyone is blessed. And we are a family here. We are not a group member here. We are a family in this group. Members nahi hai, we are a family here. Closely knitted, closely group family. Thank you, Salini. You can close it today. Thank you. So tomorrow we come with Your another pleasure. forgiveness, and all 3 are very important. All 4 days are very important for yourself. Let's all do it. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Atma Namaste. May everybody have a blessed day. Bye-bye. Thank you.